Hello, welcome back to Prachi Progress with Prachi. I'm Prachi Soni from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikhababad. So, this is a revision series of Class 12 NCRT Geography. There is a parallel series going on detailed analysis of the chapters, and that series is from book India, People and Economy, and this is from Fundamentals of Human Geography. And in this revision series, we've already revised the first five chapters of this book, and chapter number 6 is not coming in CBSE board examinations this year if they bound to happen. So if they are about to happen, but as this is specifically for the people who are appearing for exams, so firstly we would be revising the chapters which form the part of the syllabus, and then we would be talking about the chapters or studying the chapters which are not. So don't worry, there would be a revision for those chapters as well in the later classes, but for today, for now, we would be continuing with the syllabus which is for sure the part. So today we would be starting with chapter number 7, that is tertiary and quaternary activities. In the last class, we were talking about the primary sector. We talked about different types of primary activities, including hunting, gathering, agriculture, mining. Today we would be talking about the third sector of economy, that is your tertiary sector. So there are four sectors: primary, secondary, tertiary, and quaternary. So primary sector we've already studied. Tertiary sector, that is chapter number 6, is not the part of the syllabus, so that we would be covering at the end. Then comes the tertiary sector and quaternary sector. So both of these sectors are included in the same chapter. So we would be dealing with both of them in this series. So this is tertiary and quaternary activities. What do you mean by tertiary activities? All of us have studied in our junior classes that anything which is related to service providing or services is known as tertiary activities. So these tertiary activities, what are these activities? What are the things which are included in these activities? So when you fall ill or you go to a family doctor, so when you specifically fall ill, you go to a family doctor, you go for teaching, you go to school for teaching services, you go to, if you have, if you have any problem with the constitution or anything, you go to a lawyer. So these doctors, teachers, lawyers, shopkeepers, all of them form a part of your tertiary activities or service sector. So likewise, professionals, any professional who provide you services in exchange of money, जो भी आपके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसको आप इन रिटर्न कुछ पैसे दे रहे हो, कुछ मनी दे रहे हो, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल्स, जो आपके सर्विसेज के बेसिस पे आपसे पैसे लेते हैं, उनकी सर्विसेज के एक्सचेंज में आपसे पैसे लेते हैं. बट ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन. ये सारे कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं. ये स्किल्स होंगे तभी वो आपको स्किल्स दे पाएंगे, और वो स्किल्स की आपको ज़रूरत होगी, देन ओनली इन एक्सचेंज यू विल बी एबल टू गिव देम दी मनी. सो इन सर्विसेज के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों की ज़रूरत होती है. मतलब आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस सर्विसेज, दिस स्किल्स इज ऑल अबाउट, एंड देन यू शुड ऑल्सो हैव द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू सेल योर सर्विसेज. आप डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर MBBS भी करना पड़ेगा, और आपको थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिसिंग भी करनी पड़ेगी. इन MBBS ऑल्सो 1 साल का आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, जहां आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप उन सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकें. तो सिमिलरली ऑल दी सर्विसेज इंक्लूड्स बोथ द पोर्शन, द स्किल लर्निंग पार्ट एंड स्किल प्रैक्टिसिंग. सो टर्शरी एक्टिविटीज़ वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती हैं. मैन पावर बहुत ज़रूरी कॉम्पोनेंट है सर्विस सेक्टर का, एंड जनरली ये स्किल्ड लेबर करती है. प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स ये सारी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं. जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसमें जनरली अगर कोई भी कंट्री अभी बहुत शुरू करा है उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस, तो इनिशियली मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन इज अंडर प्राइमरी सेक्टर. मतलब वो लोग सारे, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन होती है 60 to 70% ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. धीरे धीरे जब वो लेटर स्टेज पे आते हैं तो सेकेंडरी स्टेज का पॉपुलेशन बढ़ता है, और फिर इन दी जब कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हो जाती हैं तब द हाइएस्ट प्रपोर्शन इज इन टर्शरी सेक्टर. बट इंडिया के केस में इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. हाउ इज़ इट डिफरेंट? क्योंकि
इंडिया के केस में जो सेकेंडरी सेक्टर वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा हुआ नहीं, हम लोगों ने सीधा प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे जंप मारा है. सो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स वर्क इन द टर्शरी सेक्टर एंड अ मॉडरेट प्रपोर्शन, और एक परफेक्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो टर्शरी सेक्टर में काम करता है, सेकंड प्राइमरी सेक्टर में उससे कम, और सेकेंडरी सेक्टर में बहुत मिनिमम. तो टर्शरी सेक्टर जो सेक्टर है इसमें दो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा एक्सचेंज. प्रोडक्शन मतलब आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपकी कंपनी या जो भी यू आर प्रोड्यूसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोविजन दैट आर कंज्यूम्ड, वो आपकी सर्विसेज जो भी आगे कंज्यूम हो सकती हैं उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं. आप ये किस बेसिस से मैनेज करी जाती हैं, आपके वेजेस और सैलरी के बेसिस से पता चलता है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया. मतलब अगर मैं आई एम टीचिंग यू, सो इफ द स्कूल गिव्स मी 1000 रुपीज़ एज दी सैलरी, तो वो 1000 रुपीज़ क्या है, वो 1000 रुपीज़ मेरी प्रोडक्शन की वैल्यू है, जो मैंने आपको प्रोड्यूस किया, मैंने टीचिंग जो अपने स्किल सर्विसेज प्रोड्यूस करी, उसके बदले में मुझे टीचिंग वैल्यू मिली, वेजेस मिली, सैलरीज मिली, एंड दैट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट. एक्सचेंज में क्या होता है, अब ट्रेड एक्सचेंज कैसे हो रहा है, अब यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब, आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, अपनी वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट्स, एनी प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग टू स्टडी, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. और इस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में क्या क्या एक्सचेंज चीज़ें हो रही हैं, ट्रेड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है ना, इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिससे मैं और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. सो दिस इज एक्सचेंज ऑफ माई सर्विसेज. ये सारी चीज़ें ये डिस्टेंस को कम से कम ओवरकम करने के लिए करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती, बट वो टीचिंग सर्विसेज आपको स्कूल से नहीं बल्कि मेरे घर पर आके लेनी पड़ती. सो हर किसी का, आप सबका ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता मेरे घर पे आने का, डेली आने जाने का, और आपको ऐसे ही मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, आपको 5 टीचर्स के घर जाना है, तो आपको 5 टीचर्स का कॉस्ट भरना पड़ता, उतना ही आपको टाइम लगता, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता. बट नाउ स्कूल एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको सारी सर्विसेज एक साथ, सारे 5 सब्जेक्ट्स की सर्विसेज एक साथ मिल रही है, जिससे आपका कॉस्ट और टाइम दोनों चीज़ें सेव होती है, डिस्टेंस भी. So, tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. तो जो tertiary activities होती हैं वो services production को ज़्यादा ध्यान रखती हैं, ना कि production of tangible goods. Tangible goods यानी कि वो goods जिनको आप you can touch, और उन goods को हम tangible goods बोलते हैं. They are not directly involved in processing, और ये इसमें हम directly physical raw materials की processing नहीं होती है, मतलब primary activities का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है. कुछ common examples क्या हैं आपके, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डरर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर. आई होप यू नो ऑल ऑफ दीज. सो मेजर डिफरेंस जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है वो आपका आता है कि जो टर्शरी जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपको स्किल आता है या नहीं आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, और आपके पास उस काम को करने का नॉलेज है या नहीं है. टेक्निक्स, मशीनरी, फैक्ट्री प्रोसेसेस, इन सब का कुछ खास लेना देना नहीं होता है हमारे सर्विस सेक्टर से. कुछ टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, आपको बुक्स लेनी होती हैं, आप स्टेशनरी पे जाते हो, ट्रेडर्स की शॉप पे जाते हो, आपको ट्रैवल करना होता है, बस और ट्रेन का यूज़ करते हो, लेटर सेंड करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो. सो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेज हैं. तो 10 ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और जो सर्विसेज हैं वो टर्शरी एक्टिविटीज़ का पार्ट फॉर्म करती हैं. सो देयर इज़ अ टेबल गिवन. सो दिस टेबल वी वुड बी डीलिंग इन द लास्ट. जब हम सारा पढ़ लेंगे तो हम इस टेबल को एज अ रिविजन वी वुड बी सीइंग. First, let us complete the content, and then at the end, we would, devote 5 to 10 minutes for revising everything with the help of the table. Now, trade and commerce. Trade and commerce क्या होता है? Trade जो है, especially trade is what? Buying and selling of items produced elsewhere. तो कोई भी आइटम जो आपके कहीं और प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको खरीदना और उनको बेचना is a process which is part of trading. All the services in retail and wholesale trading are commerce and specifically intended for profit. जो भी सर्विसेज, जो भी चीज़ आपकी ट्रेडिंग का पार्ट होती है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट. हम कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग करना. प्रॉफिट है मोटिव है, और ये प्रॉफिट आप कहाँ से मेक करोगे? ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं. ट्रेडिंग सेंटर से यू कैन मेक दिस प्रॉफिट. जो जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है, पहले बाटा सिस्टम होता था. बाटा सिस्टम यानी कि आपको यू नीड अ ग्लास, आई नीड अ पेन. तो आप आप पेन बेचते हो, मैं ग्लास बेचती हूँ, आप मुझे पेन दे दो, मैं आपको ग्लास एक्सचेंज कर दूंगी. तो दिस वॉज अ बाटा सिस्टम. दिस इज वेरी वेग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल.
सो बट धीरे धीरे करके मनी एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू हो गई, ट्रेडिंग सेंटर थे वो एक्सपैंड हो गए, बड़े होने लग गए, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स इंक्रीज हो गए. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेड. जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो दो चीज़ों में डिवाइडेड हैं. अर्बन एरियाज में ट्रेडिंग सेंटर होते हैं और रूरल एरियाज में ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. तो जो हमारे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वो आसपास की सेटलमेंट्स का ध्यान रखते हैं, सिर्फ आसपास की चीज़ों को क्या ज़रूरत है लोगों की, उनकी नीड्स क्या हैं उसको देखते हैं. ये क्वाजी अर्बन सेंटर्स होते हैं. क्वाजी अर्बन सेंटर मतलब, क्वाजी का मतलब होता है बीच का, मिडिल, ना ही कंप्लीटली अर्बन है ना ही कंप्लीटली रूरल होता है. सो क्वाजी अर्बन का मतलब कोशिश करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विसेज अपने लोगों को पहुंचा सकें. ये जो सर्विसेज, ये जो टाइप ऑफ एक्टिविटी है ये बहुत ही रूडिमेंट्री यानी कि बहुत बेसिक होती है. पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं. लोकल लेवल पे कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है. मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज हैं, रिटेलिंग एरियाज में आ जाती हैं. ये कम्प्लीटली अर्बन नहीं है बट इनके ये कोशिश करते हैं कि अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें फ्रीक्वेंटली, जैसे लोगों की रूरल एरियाज में डिमांड होती है उस हिसाब से दे ट्राई टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज. फिर होती है पीरियोडिक मार्केट्स. आप सबने सुनी होगी आपके घर के आसपास वेडनेसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे संडे मार्केट, वीकेंड मार्केट. सो ये मार्केट्स होती हैं जो कि, और मंथ में एक बार होती है, दैट इज़ सेकेंड संडे को या फर्स्ट फ्राइडे को. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज मार्केट्स जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मार्केट, मतलब कुछ पीरियड के बाद ये रेगुलरली होती हैं. सो ये रूरल एरियाज में जनरली होती हैं रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स. ये डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद होती हैं. ये वीकली हो सकती हैं, बाई वीकली मतलब वीक में 2 बार हो सकती हैं. और ये मूव करती है. मोबिलिटी मतलब ऐसा है कि मंडे को, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मंडे को इन्होंने मार्केट लगाई आगरा में, ट्यूसडे को दिल्ली में, वेडनेसडे को जयपुर में, थर्सडे को भरतपुर में, एंड likewise they shift, they move from one place to another. So these markets are wholly कुछ specific date पे होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे move करते रहते हैं. They're generally busy throughout the week and और इसीलिए एक larger area को, larger group of people को ये लोग serve कर पाते हैं. फिर आज के आती हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. हमको वी ऑल नो अबाउट इट कि ये स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. जनरली सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं इनके पास. स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर हमको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आपका लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे हमको प्रोफेशनल्स जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी रिटेल ट्रेडिंग. रिटेल ट्रेडिंग क्या है? ये एक बिजनेस एक्टिविटी है विच इज कंसर्न्ड विद सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. मतलब इसमें क्या है, जनरली आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, व्हाटएवर यू हैव, ये डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल करने के लिए रखते हो. एंड मोस्ट ऑफ ये जो रिटेल ट्रेडिंग होती है ये फिक्स एस्टैब्लिशमेंट्स पे होती है. मतलब जनरली कुछ ना कुछ शॉप होती है, स्टोर होता है जहाँ पे ये रिटेल ट्रेडिंग करते हैं. बट सिर्फ रिटेल फिक्स्ड जगह पे नहीं होती है, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग भी होती है. जैसे आपके स्ट्रीट पेडलिंग जो ठेले वाले आते हैं, हैंड क्राफ्ट्स हो गया, जो आपने देखा होगा गाड़ी पे कपड़े वपड़े लटका के जो व्हीकल्स पे सेल वगैरह करते हैं. ट्रक्स हो गए, डोर टू डोर होता है, मेल ऑर्डर है, टेलीफोन है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको प्रोवाइड करने के लिए, जिनको आपको अगर यूज़ करना है तो उसको आपके लिए एक उसको स्टोर की ज़रूरत नहीं है. सो दे आर नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग थिंग्स और एक्टिविटीज़. स्टोर्स के बारे में 3 तरह के आप स्टोर्स देख सकते हो. कुछ होते हैं आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जो कि फर्स्ट लार्ज स्केल इनोवेशन है रिटेलिंग में. कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कुछ नहीं है, कंज्यूमर जहाँ पे जाके सारी चीज़ें, कोऑपरेटिव्स ऑलमोस्ट सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाए. फिर आते हैं आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स. से तो सब कुछ पता होगा आपको, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे यू गेट एवरीथिंग, व्हाटएवर यू नीड इज अवेलेबल देयर. आपका योर बिग बाजार, योर मोर, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, विशाल, मेगा मार्ट, ऑल दीज थिंग्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर डिपार्टमेंटल स्टोर्स. क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक अथॉरिटी होती है, एक हेड के पास, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कमोडिटी कर सकते हो, देख सकते हो। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं स्टोर्स में, खाने का सेक्शन अलग है, कॉस्मेटिक्स का सेक्शन अलग है, क्लोथिंग का सेक्शन अलग है। सो तो ये दिस इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, आपको जो चीज़ चाहिए यू कैन बाय फ्रॉम देयर। फिर चेन स्टोर्स होते हैं, ये यहाँ पे आप purchase of merchandise most economically, often going so far as to the direct the goods to the manufactured to their specification। मतलब ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक गुड्स, जैसे कि आपका किसी ब्रांड्स के स्टोर हो गए, आपकी ज़ारा का स्टोर है, आपका एनी ब्रांड स्टोर, उसको हम, आपका यूएस पोलो है, ज़ारा है, स्पार्क्स शूज़, लिबर्टी शूज़, तो बाटा है, ये क्या है, ये चेन स्टोर्स हैं। ये एक स्पेसिफिक आइटम बेचते हैं अपना स्पेसिफिक ब्रांड का, और इसके लिए आप इनके लिए आपको अलग अलग स्टोर्स पे इनका एक चेन होती है। जैसे अगर बाटा पे डिस्काउंट है तो आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आपको सब जगह बाटा पे डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट इज व्हाट द चेन स्टोर्स आर, कि एक जगह पे भी कुछ चेंज हर जगह पे होता है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस चेन स्टोर्स आर हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ये लोग रखते हैं, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू मेंटेन। ये ब्रांड्स होती हैं, इनको अपनी रेपुटेशन, अपना सेल, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग दे हैव टू मैनेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो जनरली द पीपल हु आर वर्किंग हियर आर वेरी स्किल्ड। नेक्स्ट इज होलसेल ट्रेडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है दैट होलसेल चीज़ें जो हम होलसेल पे बेचते हैं, लार्ज क्वांटिटी इन लेस अमाउंट। तो होलसेल ट्रेडिंग बल्क बिजनेस होता है, इंटरमीडियरी मर्चेंट्स करते हैं, सप्लाई हाउसेज होते हैं। रिटेल स्टोर से नहीं, आप किसी एक जगह से खरीदते हो। लार्ज स्टोर जैसे कि चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो चेन स्टोर्स जैसी कंपनीज होती हैं, ये डायरेक्टली सीधा जाके मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के ले आती हैं। हाउएवर जो बहुत मोस्ट रिटेल स्टोर्स होते हैं, वो अपने सप्लाईज को इंटरमीडियरी स्टोर्स, इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, बीच का। मैं I am making these earphones, now there is an intermediary जो क्या करेगा, आप तक वो goods को मुझसे लेगा और आपको सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ Amazon। सो ये Amazon क्या है, एक इंटरमीडियरी है बिटवीन द कंज्यूमर एंड यू। सो इसको हम कहते हैं, और एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है, बोट। आप डायरेक्टली बोट की कंपनी से भी जाके खरीद सकते हो, और यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। तो जो Amazon है, ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है, बीच समबडी जो दो लोगों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। So there are levels also, beginner level, intermediate level, advanced level. So intermediate is somebody who is in between. होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स। ये जनरली क्रेडिट सिस्टम पे बेस्ड करता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 10 kgs ऑफ आपने 10 पेयर ऑफ शूज़ खरीदे एक बाटा के मैन्युफैक्चरर से, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सबका पैसा एक साथ देना होगा। क्रेडिट सिस्टम चलता है, जैसे जैसे आपकी सेल होती रहेगी, आप धीरे धीरे करके होलसेलर्स को पैसे दे सकते हो। यू हैव अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, यू कैन आस्क दिस टू योर father or mother, whoever is working in the family. So wholesalers often extend credit in the retail areas. ये generally retail stores को credit देते हैं, और wholesaler के capital पे ही ज़्यादातर retail stores की company चलती है। Next comes is your transport. Transport is a service or facility by which, transport क्या है, एक service है या facility होती है जिससे लोग यानी कि people, material यानी कि सामान, manufactured goods, कोई भी गुड्स जो आपने प्रोड्यूस करे हैं, इनको फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जो कि इंसान की बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी मतलब फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर, इसको फुलफिल करती है। मॉडर्न सोसाइटीज़ रिक्वायर स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, इनको एक स्पीडी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अपना प्रोडक्शन वगैरह असिस्ट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, प्रोडक्शन है, दे नीड दैट। एंड एट एवरी स्टेज इन दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो वैल्यू ऑफ मटेरियल है वो इन्हांस होती है। अभी इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने अगर अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है तो आपको एक शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। वो शिपिंग चार्जेस क्यों होते हैं, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट होके आपके पास आएगा, तो ट्रांसपोर्ट विल इंक्लूड सम कॉस्ट, और जैसे जैसे चीज़ दूर से दूर आगे से आगे जाती रहती है, उसमें वो कॉस्ट ऐड होती रहती है। सो जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है, आपसे मैंने पूछा कि आगरा कितना दूर है। I'm just asking you an example. We are living in Agra and I'm asking you Delhi is how far. So आपके पास 3 ऑप्शन है।
आप मुझे 3 तरीके से बता सकते हो. फर्स्ट कुड बी 3 घंटे लगेंगे. सेकेंड कुड बी इट्स अराउंड 200 किलोमीटर्स. एंड थर्ड कुड बी कुछ नहीं, 300 रुपये की टिकट है, बस से आप जा सकते हो. So there are 3 ways. You can tell me in terms of time, that is 3 hours. You can tell me in terms of distance, that is 200 kilometers. Or you can tell me in terms of cost, that is 300 or 400 rupees from one place to another. तो ये जो टाइम जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है वो 3 तरीके से होता है. किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कॉस्ट डिस्टेंस. टाइम में हम एक्चुअल रूट लेंथ बताते हो आप किलोमीटर डिस्टेंस में, टाइम में आप टाइम टेकन बताते हो, और कॉस्ट में आप अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस बताते हो. इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस और इन तीनों ही चीज़ों की हमको बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है. अगर मैंने आपको बोला कि आपको आगरा से दिल्ली जाने में 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, सो यू माइट नॉट गो देयर कि 3 आवर्स के लिए, इतने से जर्नी के लिए हु पेज 2000 रुपीज़. सो तीनों ही चीज़ें, चाहे कॉस्ट हो, चाहे किलोमीटर्स हो, चाहे टाइम हो, all these things plays a very major role for you to travel from one place to another. Isochrone lines, this is very important, this can be asked in the MCQs. Isochrone lines क्या होती हैं? Iso वर्ड जहाँ भी आ जाता है इसका मतलब होता है सेम. और आइसोक्रोन लाइंस अगर आप एक मैप पे बनाते हो तो जिसका मतलब ये है कि इन सारी जगहों में जाने के लिए आपको सिमिलर टाइम लगेगा. मैप जॉइंस प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम. मतलब वो सारी जगहें जहाँ पे आपको 3 घंटा लगेगा फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, फ्रॉम आगरा टू जयपुर, आपको सेम टाइम जहाँ भी लगेगा ट्रैवल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं आइसोक्रोन लाइंस इफ दे आर ड्रॉन ऑन द मैप. नाउ नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑन नेटवर्क. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को इतना, सो दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ प्लेस, इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे. एक पर्टिकुलर नोड क्या होता है? जहाँ पे 2 या चीज़ें, कुछ एक मार्केट हो गई, एक रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, ये नोड्स होते हैं जो कि आपको लिंक करते हैं. और रोड्स, एक नोड, जैसे ये बस स्टॉप है और ये मार्केट है, इसको जो बीच में रोड होगी उसको हम बोलेंगे लिंक. तो 2 नोड्स को कनेक्ट करने के बीच में जो रोड होती है उसको बोलते हैं लिंक्स. नेटवर्क में बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, और एक नोड क्या होता है? एक मीटिंग पॉइंट होता है ऑफ 2 और मोर रूट्स. ओरिजिन हो सकता है, डेस्टिनेशन हो सकता है, और साइजेबल छोटा बहुत टाउन का रास्ता हो सकता है. ना फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट. आपको कहीं जाना हो तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं? डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट बहुत इन्फ्लुएंस करता है उसके साइज ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि आपकी ट्रांसपोर्ट, अभी आपकी फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ विलेज, वहाँ पे अगर मेट्रो स्टेशन बना दिया जाता है तो क्या वो मेट्रो स्टेशन बनाना इज़ राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इनफ नहीं है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उनको ज़रूरत नहीं है. तो डिमांड पे बहुत बेस करता है कि आपकी क्या नीड्स हैं. इन दैट केस, ऑन दैट बेसिस ही आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकती है. जितना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन साइज होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी. रूट्स जो हैं आपके डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, फंड्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट. तो ये सारी चीज़ें आपको, रूट्स की क्या है, क्लाइमेट कैसा है, रास्ता कैसा है, रोड खराब तो नहीं है, ऑल दीज थिंग्स मैटर फॉर यू टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. That's it for today. We will be continuing the half part of the chapter in the upcoming classes. If you like the session, please hit the like button, do subscribe the channel, and leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.